Welcome all, and today we'll be continuing with the scientific principles of management, correct? So after having done the scientific principles of management which have been given by Mr. Frederick Winslow Taylor, today we'll be focusing on the techniques of scientific management. Today we'll be focusing on the techniques of scientific manager which helps the manager. These techniques helps the manager to apply the scientific principles of management in effective manner. These techniques will help the manager to apply the scientific principles of management in an effective manner. Now let me remind you once again that these principles, the scientific principles of management which have been given by Mr. Taylor, these principles are meant basically for operational and supervisory level. Not like the principles of management given by Mr. Fayol which were only for the administrative level. वो प्रिंसिपल्स किसके लिए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए थे. Whereas these principles are meant for the operational and supervisory level. Correct? So, our very first technique of scientific management is work study. Correct? Now, over here, it basically means before assigning the work to the workforce, that means the human resource present into your organization, it should be studied properly. Workers को task assign करने से पहले, काम देने से पहले, the manager themselves have to understand the work thoroughly. ठीक है? By going into the depth of that particular work. क्या काम है, कैसे करना है, till what time you'll have to accomplish it, क्या cost होगा, कितना effective results आपको चाहिए, ये सारी चीजें पहले आपको study करनी होती है. What are the potential and capabilities of employees? According to the potential and capability of the employees, you'll have to divide the work or give the work to the or assign the work to that particular employee. So before assigning the work to the workforce, the work should need to be studied properly. You'll have to do the detailed study of that particular job which you are going to assign to your worker. The work should be properly organized. The work which you are going to assign to your employee, correct है? जो आप अपने employees को task देने वाले हो, वो particular job should be organized properly and arranged in systematic manner. Should be organized properly and arranged in systematic manner, and there should be the critical assessment of each and every element of the job which is going to be performed under the organization. There should be the critical assessment of each and every part of job which are going to be performed into the organization, which are going to be assigned to the employees and the workers of the organization. Getting it? So work should be organized properly and should be arranged in systematic manner. Correct है? And the work which you are going to assign to your employee, उसका critical assessment करना भी क्या होता है? Equivalently important होता है. Therefore Taylor said, or we can say that Taylor emphasized that deep analysis of all activities, in-depth analysis of each and every activities of the organization need to be done. That is, you need to ensure, that means you need to ensure that you are producing the maximum possible output, which means that you are producing the maximum possible output with the help of, by minimizing the efforts and by minimizing the cost. मिनिमम कॉस्ट मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप कैसे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट ला सकते हैं? बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्क स्टडी, when we talk about work study, in order to understand the work study in detail, you will have to go through with these four technical terms. Correct? So work study is basically based on these four techniques which we're going to see one by one in detail. Correct? So our very first work study is stop. Okay. Now under work study, the very first technique is method study. Method study में we're going to find out by adopting the proper means, by adopting the proper methodology, हम find out करेंगे one best way for doing the job. Taylor ने always emphasize किया है that there is only one best way to accomplish a job. Correct है? So over here in method study, we will try to find out by analyzing the job. Correct है?
By analyzing the job, we're going to find out the one best way for completing that particular job, which we're going to give to our employees. Correct है? जैसे let's take an example. Room है, there is a room. ये square जो है, ये हमारा room है. Correct है? Now in this room, you have been told to put the chair to the center. आपको एक chair दी है. You are standing over here. Mr. A is here, and he has been given a task to keep the chair to the center. This is a room. Mr. A को task दिया गया है कि he have to place the chair to the center. Now there are different ways to accomplish this given particular task. कौन कौन सा तरीका हो सकता है? Mr. A will go from this end to this end and then to this end. Correct है? First way of completing the task ऐसे कर सकता है. Or else Mr. A can directly move from this corner to this corner. Right? The second way of accomplishing a task. Or he can go like this. From here to this end, then here, and then from this end to this end. So there are multiple ways to accomplish a job in an organization. बहुत सारे रास्ते होते हैं. But which way you're going to choose? जिस भी वे को आप चूज करोगे, मेक श्योर इट हैज टू बी द बेस्ट पॉसिबल वे टू अकम्प्लिश अ टास्क. बेस्ट पॉसिबल वे कैसे? कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट्स और कॉस्ट के साथ यू विल बी एबल टू परफॉर्म द टास्क. करेक्ट है? और वो बेस्ट वे कौन सा है? रूट नंबर 2, जहाँ पे मिस्टर ए फ्रॉम वन एंड टू डायरेक्टली सेकेंड एंड को मूव करेंगे एंड ही विल प्लेस द चेयर ओवर हियर. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अकम्प्लिशिंग द टास्क. करेक्ट है? बिकॉज इट इज इफेक्टिव, it is efficient, it will going to save the time. यहाँ से यहाँ फिर यहाँ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आप क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं. सेम वे यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से फिर इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से फिर आप इस कॉर्नर पे क्या कर रहे हो? रिसोर्सेज को मूव करो. इट इज अगेन गोइंग टू बी दी लेंदी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू. करेक्ट है? सो वी कैन से दैट दिस द सेकेंड वे ऑफ अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू कंप्लीट अ टास्क. करेक्ट है? वो बेस्ट पॉसिबल वे है. तो टेलर ने हमेशा एम्फेसिस किया है कि ये बेस्ट वे फाइंड आउट करो टू अकम्प्लिश अ जॉब. बेस्ट वे फाइंड आउट करो. और ये कब पता होगा चलेगा आपको कि कौन सा बेस्ट वे है? जब आप अपने गिवन टास्क को क्या करोगे? एनालाइज करोगे, जैसे हमने किया. दिस इज रूम, दीज आर दी पॉसिबल सोल्यूशंस. ये दीज आर दी सोल्यूशन जिसके हेल्प से आप इस एंड पे अपनी चेयर को क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो. करेक्ट है? ये सारे रास्ते हैं. और भी वे हो सकता है, कोई बंदा यहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ जाएगा. देर आर द मल्टीपल वेज. ठीक है? हमने सारे ऑप्शंस को क्या किया? एनालाइज किया. हर पॉसिबल ऑप्शन को हमने एनालाइज किया और उसमें से जो सो टेलर emphasized on finding the one best way for accomplishing job. So under method study, it will going to help you out to find out the routes which will minimize the cost of production, and will going to maximize the quality of the goods and services जो हम क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे अपने end customers को, because customer satisfaction is the prime important thing into the organization. अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, so after certain period of time they are going to stop demanding your product. करेक्ट है? जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? हैम्पर करेगी. So minimize the cost of production and maximize the quality of the goods and services which you are going to deliver to the end customer. Correct? For the customer satisfaction. It also helps to decide the sequence of the operation. क्या sequence होगा? प्लान ए कब इम्प्लीमेंट करना है, प्लान बी कब इम्प्लीमेंट करना है, क्या प्रोसीजर होगा इम्प्लीमेंटेशन का. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में आपको क्या करता है? मेथड स्टडी हेल्प करता है. मेथड स्टडी ऑल्सो हेल्प्स यू टू पुट दी right thing on the right place. Either it would be the man or the machinery or the raw material. करेक्ट है? किसको कहाँ कब सेट करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में क्या करता है? आपको मेथड स्टडी अंडर वर्क स्टडी हेल्प प्रोवाइड करता है. Now let us just move to the second technique of work study, that is motion study. Yes. The second technique under work study is motion study. So basically under motion study, we will try
to observe very closely the body movement of the employees while they are engaged into the work. We are going to observe closely the body movement of the employees while they are engaged into the work, while they are performing the task. Now, along with observing the movement of worker, we are also going to observe the movement of machineries. So, motion study means the movement of worker as well as machine while doing a task. The movement of worker as well as machine while doing a task. Now, Taylor came up with the three kinds of motions. Correct? The first one is productive, then unproductive, and then comes the incidental movement of the body. Correct? प्रोडक्टिव, आपको याद है हमने अभी लास्ट वाले में मेथड स्टडी में एक एग्जांपल लिया था, प्लेसिंग द चेयर फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम. तो जो सेकंड मेथड था, जो हमारा बेस्ट वे था, जो हमने फाइंड आउट किया था, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट था, करेक्ट है, वो मेथड जो है, वो जो पर्टिकुलर वे है, वो है हमारा प्रोडक्टिव वे ऑफ अकम्प्लिशिंग अ टास्क. अगर आप वो वे चूज करते हो, दैट मीन्स यू आर एंगेज इनटू द प्रोडक्टिव मूवमेंट. आपके वर्कर्स और आपकी मशीनरीज क्या है, प्रोडक्टिव वे में एंगेज्ड हैं टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग अ टास्क. जो सेकंड वाला मूवमेंट, फर्स्ट वाला मूवमेंट था, जहां पे हमने एक एल बनाया था, करेक्ट है, अपोजिट एल, मिरर एल, करेक्ट है, जहां पे आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं एंड देन यू रीच टू योर डेस्टिनेशन. वो जो था, वहां पे आपका एक मूव जो था वो अननेसेसरी था, जरूरत नहीं थी उसकी. फिर वो क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया. तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट या वो पर्टिकुलर रूट आप अगर चूज करते हो, दैट मीन्स यू आर अलाइन टू द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. आपके मैन और मशीनरीज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं. Now, apart from these two movements, there is the incidental movement. Depending upon the situation, circumstance and scenario in which you are dealing with, आप क्या करते हो, in the case of emergencies, without analyzing the given task, आप अपना टास्क परफॉर्म कर लेते हैं. करेक्ट है. तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट जो होता है, वो होता है हमारा इंसिडेंटल मूवमेंट. करेक्ट है. जो प्रोडक्टिव मूवमेंट होता है, वो आपका टाइम सेव करता है. The objective of motion study is to find out, the objective of the motion study is to find out the unnecessary routes or the ways, to eliminate the wastage of the movements. Unnecessary movements को क्या करना, eliminate कर देना, so that it will save your time, it will going to save your efforts, and it will also going to save your cost. Correct है. So with the help of मोशन स्टडी आप क्या करोगे, अननेसेसरी मूवमेंट्स को, अननेसेसरी प्रोसेस को क्या करोगे, अननेसेसरी स्टेप्स को ऑल्ट डिलीट कर दोगे परमानेंटली अपने पर्टिकुलर वर्क सिस्टम से. नाउ टेलर एम्फेसिस ऑन यूजिंग द स्टॉप वॉचेस, वेरियस साइंस एंड सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोशंस, जिसके हेल्प से आपके वर्कर्स क्या कर सके, इजीली अपने मोशंस में एंगेज हो सके. करेक्ट है. स्टॉप वॉच यूज करो, टाइमर सेट करो. करेक्ट है. आपको टारगेट्स दिए जाते हैं आजकल, इन टुडेज वर्ल्ड इट इज वेरी कॉमन. आईटी फील्ड में अगर इफ यू एंगेज्ड, आपको क्वार्टरली टारगेट्स दिए जाते हैं. करेक्ट है. जिनको आपको क्या करना होता है, अचीव करना होता है, जो आपके परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने विद इन द क्वार्टर गिवन टारगेट अचीव कर लिया, दैट मीन्स यू आर वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन. इफ नॉट, तो आपके इंसेंटिव्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. अगर आपने ओवर अचीव किया तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलता है. करेक्ट है. सो टेलर एम्फेसाइज्ड ऑन यूजिंग दी स्टॉप वॉचेस, टाइमर दे दो, टाइम बाउंडेशन दे दो, सो दैट आपका एम्प्लॉय क्या होगा, 100% कॉन्सेंट्रेट, डेडिकेशन के साथ काम करेगा. सिंबल्स यूज करो इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शंस और द वेज टू द एम्प्लॉयज. ठीक है. कलर्स यूज करो टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोशन. दिस पर्टिकुलर मेथड helps to design the suitable equipments, tools and equipments in the machineries, ठीक है, in order to produce the better quality of goods and services. And once you have find out or design the suitable equipments, after that you'll have to train your employees that how to use that particular equipment. Machinery आपने install कर ली, employees को नहीं पता उसको कैसे use करना है. Correct है. They are going to waste the resources. It will going to take a lot of time for the employees also. Correct है. So find out or design the suitable equipment and tools and accordingly educate your workers, your workforce on the use of those new
or advanced machineries, tools and equipment. This particular method also helps to find out whether something or whether some elements of the job can be eliminated or combined और उनका सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत है क्या, करेक्ट है। इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने में क्या करता है, मोशन स्टडी हमको हेल्प करता है। This particular method helps to improve the efficiencies of the employees and it also helps to improve the productivity of the organization in the long run. So ये मेथड मोशन स्टडी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, करेक्ट है, आप बाइफिकेट कर पाओगे बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वर्क। आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं या एलिमेंट ऑफ जॉब है जिसको एलिमिनेट करने की जरूरत है, या मर्ज कर दो या फिर सीक्वेंस को क्या करो, चेंज कर दो, सो दैट बिफोर टाइम आप और ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में अपने टारगेट को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टेक्निक of the work study, that next technique and the work study is time study, correct है। Time study helps us to understand, or the organization, it helps the managers in understanding how much time a worker is going to take to complete a particular task। आपने जो टास्क, जो जॉब उसको असाइन किया है, जो पार्ट ऑफ वर्क उसको असाइन किया है, उस काम को कंप्लीट करने में वो वर्कर एवरेज अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको देता है टाइम स्टडी। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट, और स्टैंडर्ड टाइम शुड बी टेकन बाय अ वर्कर इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ गिवन जॉब और द टास्क। सो वी कैन यूज द टाइम मेजरिंग डिवाइस, करेक्ट। अभी मैंने एग्जांपल दिया था मोशन में, करेक्ट है, मोशन स्टडी में, कि आप क्या देते हो, टाइम बाउंडेशन डाल देते हो, 3 months क्वार्टरली टारगेट्स दे देते हो अपने एम्प्लॉयज को, करेक्ट है। It also helps in deciding the fair day's work। एक दिन में एक एम्प्लॉय को से आप कितना काम करवा सकते हो, सो दैट आप उसको ओवर प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, करेक्ट है। एंड ऑन दी अदर हैंड आप उसके पोटेंशियल कैपेबिलिटीज को अंडर यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो। सो इन अ राइट एंड अ फेयर वे एक एम्प्लॉय से आप कितना काम करवा सकते हो, करेक्ट है। सो बेसिकली इट इज बेस्ड, और इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द एवरेज वर्कर। एक एवरेज वर्कर की क्या स्पीड हो सकती है इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गिवन, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द गिवन टास्क, करेक्ट है। ये फाइंड आउट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है टाइम स्टडी, करेक्ट है। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट इन अ फैक्ट्री देयर इज अ वर्कर जो 1 घंटे में 1 यूनिट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इन एन आवर द वर्कर इज केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट। सो इफ ही इज वर्किंग 8 hours इन अ डे ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस 7 यूनिट्स, करेक्ट है। 1 घंटे में 1 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और 8 hours में he is working for 8 hours in a day, he will be able to produce 7 units। 1 घंटा हम उसका रेस्ट ब्रेक लंच ब्रेक वगैरह कंसीडर करते हैं, तो वो 1 घंटा हम हटा देते हैं। सो 8 घंटे अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो आपको 7 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे सकता है, और द एम्प्लॉय इज केपेबल इनफ टू गिव यू दी 7 यूनिट्स इन अ डे। सो इफ ही इज वर्किंग फॉर 30 days इन अ मंथ, ठीक है, छुट्टी वुट्टी नहीं ले रहा है, नो हॉलीडेज ऑन संडेज, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर है, जो फैक्ट्रीज जो होती है वो ऑलमोस्ट एवरी डे इन अ वीक क्या करती है, रनिंग रहती है, स्पेशली इन दी सीजन टाइम, ठीक है। सो इफ ही इज वर्किंग फॉर 30 days इन अ मंथ ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 210 यूनिट्स पर मंथ, करेक्ट है। सो वो 210 यूनिट्स पर मंथ जो है वो है आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस बाय एन एम्प्लॉय, करेक्ट है। आपने उसको ओवर प्रेशराइज नहीं किया है, करेक्ट है, प्रॉपर पॉज एंड रेस्ट ब्रेक्स भी उसको दिए हैं, आपने उसकी कैपेबिलिटीज को अंडर यूटिलाइज भी नहीं किया, उसकी कैपेबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट को फुल्ली यूटिलाइज करते हुए विदाउट प्रेशरिंग द एम्प्लॉय वो 1 महीने में 210 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है, जो हम मान के चलते हैं कि एक एवरेज वर्कर की क्या होगी, स्पीड होगी, करेक्ट है। सो ये आपका है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि हर एक एम्प्लॉय को 1 महीने में कम से कम 210 यूनिट्स क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। सो अगर कोई एम्प्लॉय, इफ एनी एम्प्लॉय ओवर प्रोड्यूसेस, कोई एक एम्प्लॉय 210 यूनिट से ज्यादा काम करता है या ज्यादा आउटपुट आपको अवेलेबल करा के देता है विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, 30 दिन के अंदर ही 8 घंटे काम करने के साथ ही वो ज्यादा प्रोड्यूस कर लेता है, करेक्ट है। दैट मीन्स उसका वे क्या है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है। सो ऐसे एम्प्लॉयज को आप क्या करोगे, अप्रिशिएट करोगे बाय गिविंग देम दी इंसेंटिव्स,
और अगर कोई वर्कर विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, दैट मीन्स विद इन द पीरियड ऑफ 30 मंथ्स 210 यूनिट्स या फिर अप्रोक्सीमेटली 200 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द डिले. हो सकता है उसको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए हो, करेक्ट है. हो सकता है जिस मेथोडोलॉजी को वो ऑप्ट कर रहा है इट इज नॉट राइट, वो अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है ऑफ द मैन एंड मशीन, अपने खुद के एफर्ट्स की और जिस मशीनरी पे वो काम कर रहा है उसका, जिसकी वजह से डिले हो रहा है और वो विद इन द टाइम फ्रेम टास्क अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा है. सो आप ये क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे. सो टाइम स्टडी हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ मच वर्क कैन बी डन इन अ डे. टाइम स्टडी हेल्प्स टू डिटरमाइन how much work can be done in a day, and based on that it helps to decide the incentive schemes and the labor costs. क्या इंसेंटिव, आप कैसे इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे, किसको इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे. अभी मैंने बताया जो ओवर परफॉर्म कर जाता है, जो 210 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस कर जाता है, 30 दिन काम करके 8 घंटे ही काम करने के बावजूद भी वो 210 से ज्यादा यूनिट्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉय क्या करता है, अप्रेजल या फिर इंसेंटिव डिजर्व करता है. तो क्या रेशियोज होगा आपका इंसेंटिव्स डिक्लेयर करने का, करेक्ट है. आप क्या लेबर कॉस्ट ऑफर करने वाले हो अपने एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू द वर्क जो आप उनसे करवाने वाले हो, करेक्ट है. इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने में आपको कौन हेल्प करता है, टाइम स्टडी आपको हेल्प प्रोवाइड करता है. टेक एन एग्जाम्पल, मेरे फैक्ट्री में मेरा टारगेट है कि एवरी मंथ आई हैव टू प्रोड्यूस 400 यूनिट्स. मुझे क्या करना है, हर महीने कम से कम 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, एज आई नो दैट वन वर्कर शुड बी केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 210 यूनिट्स पर मंथ. सो इन ऑर्डर टू अचीव माई पर्टिकुलर गोल दैट इज टू प्रोड्यूस 400 यूनिट्स अ मंथ, मुझे 2 वर्कर्स की जरूरत होगी. काम कितना आसान हो गया, क्यों आसान हो गया, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड मेजर्ड परफॉर्मेंस थी. आई हैव द एवरेज वर्कर्स परफॉर्मेंस रेशियो इन माई हैंड, इसलिए मेरा टास्क क्या हो गया, इजी हो गया. So it is based on the speed of the average worker, and it helps the organization and the manager to decide the incentive schemes and the labor cost, correct. Now moving towards the next technique of work study, that is, so next or the last part of the work study technique is fatigue study. Fatigue basically means फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो हमारे एम्प्लॉयज को होता है, जो हमारे वर्कर्स को होता है, करेक्ट है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस. नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड द फटीग. क्या रीजंस हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस में है, प्रेशराइज है. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट इफ योर एम्प्लॉय इज अंडरगोइंग विद द फटीग, it will going to affect the health of the employee and the efficiency of the employee, करेक्ट है. उसकी efficiency और उसके health दोनों पे impact पड़ेगा, which is not good for an ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है. आपका एम्प्लॉय जितना हेल्दी होगा, जितना साउंड उसके दिमाग से होगा, करेक्ट है, जितना एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा, उतने बेटर वे में आपको वो क्या कर पाएगा, आउटपुट प्रोवाइड कर पाएगा, उतने ही एफिशिएंट मैनर में वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा. आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड इट विल गोइंग टू लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है. सो हेल्दी इन एफिशिएंट वर्कर is very necessary for an organization to regain the healthy and the efficient workers. तो फटीग के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय क्या करता है, प्रेशराइज होता है. इट कैन बी द लॉन्ग वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा लेंदी है, आप टाइम में प्रॉपर टाइम के बाद, इंटरवल्स के बाद रेस्ट या पॉज ब्रेक नहीं दे रहे हो, या जो दे रहे हो वो सफिशिएंट इनफ नहीं है. हो सकता है वर्किंग कंडीशन अनसूटेबल हो सकता है एम्प्लॉय की बॉस के साथ कुछ अनबन हुई हो, करेक्ट है. कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन दी बॉस एंड द एम्प्लॉयज, वर्किंग कंडीशन सुटेबल नहीं है, हाइजीन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द जॉब वो सफिशिएंट नहीं है, या वो बहुत ज्यादा क्या है, आउटडेटेड है, करेक्ट है. टारगेट प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसको एम्प्लॉय क्या नहीं कर पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है. तो वेरियस एंड डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय फटीग को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है. So you'll have to find out that particular reason. Under fatigue study, जब आप fatigue study करते हो तो it helps to regain the stamina of your employee. It also reduces the causes of the fatigue as you are aware कि कौन कौन से reasons हैं जो
जो क्या कर सकते हैं, फटीग क्रिएट कर सकते हैं अमंग्स द एम्प्लॉयज। आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लोगे, प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करोगे, मैनेजर क्या होगा, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होगा विद द एम्प्लॉय, सो दैट आपका एम्प्लॉय हेल्दी हो और एफिशिएंटली वर्क करके आपको क्या दे सके, एक बेटर क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोवाइड कर सके। सो हियर वी आर डन विद द 4 डिफरेंट टेक्निक्स अंडर द वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, motion study, time study, in fatigue study. Now let us just move on towards the second technique of the scientific management, that is now the second scientific technique of scientific management is standardization of tools and equipment. Abhi tak we were only focusing on standardizing the one best method or the way of doing the job. Over here, we're also going to standardize the tools and equipments on which your employees are going to work. Correct? And it will going to lead toward the simplification of the work for the workers. जो grassroots level पे क्या कर रहे हैं, आपके organization की success के लिए काम कर रहे हैं. Correct? Now, it refers to, this particular technique refers to setting the standards for each and every element of the job. Setting the standards for each and every element of the job which is going to be performed in the organization by your worker. It can be the standardization of the process, correct? Workers should know how क्या process है, कैसे उनको raw material input करना है in the machineries, उसके बाद how to switch on the machineries, when to stop the machinery, when to switch off the machinery, correct? It could be either the standardization of the raw material, quality of the raw material ही आप क्या करते हो, purchase करते हो. In an organization when you are dealing with the clients and the customer and the general public, we always know हमारा एक बेसिक मूल मंत्र रहा है that never to compromise with the quality. हम कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. So setting the standards for the raw material, setting the standards for the time which your employees are going to take to perform the particular job. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, मशीनरी के लिए, मेथड या फिर वर्किंग कंडीशन, टू सेट दी स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या की जाने वाली है, परफॉर्म की जाने वाली है. इट विल डेफिनेटली गोइंग टू लीड टुवर्ड्स द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दी वर्क. करेक्ट है? एग्जाम्पल लेते हैं पेन का. करेक्ट है? एक कंपनी है, सेलो ग्रिपर कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर फ्लेक्सी ले लेते हैं जो क्या करती है, पेन मैन्युफैक्चर करती है ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कलर्स का. करेक्ट है? सो वंस वी परचेज अ पेन, सेलोग्रिपर पेन की बात करें तो मेरे ख्याल से 10 रुपए का एक सेलोग्रिपर आता है. तो आप पेन परचेज करते हो, द वन हु इज फॉन्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन, जो हमेशा सेलोग्रिपर से ही अगर आप लिखना पसंद करते हो, तो हर बार आप नया पेन नहीं परचेज करते. करेक्ट है? उसका इंक खत्म हो जाता है, हम नई रिफिल परचेज करते हैं. क्या करते हैं? हम नई रिफिल परचेज करते हैं. करेक्ट है? So this is possible only with the help of the standardization. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, स्टैंडर्डाइजेशन को अधर कर रही है. In order to produce the identical units, the organization need to adhere to the standardization. अभी मैंने आपको बताया था, standardization can be either of the raw material or the process or the production technique, anything. आपको हर चीज में क्या करना है, एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके रखना है, सो दैट आप एक आइडेंटिकल यूनिट हर बार प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर्स को क्या कर सको, प्रोवाइड कर सको. टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेट अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर बोथ. Set the standards for both, not only for the machineries, tools and equipments, but also for the human resource जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. दोनों के लिए ही क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं. सेट अप दी स्टैंडर्ड्स, मेंटेन दी क्वालिटी स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर बोथ ह्यूमन, आपके लेबर फोर्स के लिए भी और आपकी मशीनरीज के लिए भी. करेक्ट है? प्रोवाइड द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड द प्रोड्यूसर. आपकी कार है, ठीक है, आपके कार का वाइपर क्या हो गया है, खराब हो गया. फ्रंट वाइपर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन द रेनी सीजन. करेक्ट है? सो वाइपर खराब हो गया आपके गाड़ी का, तो गाड़ी चेंज कर दो. नहीं करते ना, हम वाइपर चेंज करते हैं. ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज योर मैन्युफैक्चरर हैज बीन adhered towards the standardization of the parts in the products which is
मैन्युफैक्चरिंग. सो अगर किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आई, सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द होल यूनिट, आप सिर्फ उस पार्ट को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन इज अदरिंग टूवर्ड्स द स्टैंडर्डाइजेशन. करेक्ट है? सो स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी of tools and equipments to the workers. It helps to provide the good quality of tools and equipment to the workers, which will help the worker to accomplish the job easily and effectively. Which will help, अगर आप अच्छे क्वालिटी का tools and equipment provide कर रहे हो, तो it will going to help to the worker to accomplish the job easily in an efficient and effective manner, which will definitely going to lead towards the increase in the productivity of the organization. Correct? Get the production done as per the target. It helps to get the production done as per the target in predetermined time. जो टाइम आपने सेट किया है, अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन को अडॉप्ट करते हो एट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द जॉब जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो बिफोर टाइम आप अपने जॉब को मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में अकम्प्लिश करने में क्या होगे, सक्सेसफुल होगे. करेक्ट है? Standardization is going to help to the organization to reduce the wastage of the resources, to reduce the causes of the fatigue among the employees. अभी fatigue किया था हमने under the work studies. Correct है? It will going to help you to reduce the cost of production and improve the quality of the work. आपके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इम्प्रोवाइज करेगा. आप अगर रॉ मटेरियल के केस में स्टैंडर्डाइजेशन को अडॉप्ट करते हो, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा क्या होगी, मेंटेन रहेगी. करेक्ट है? तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दी सेवरल वेज. नाउ द थर्ड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टॉप इज सेटिंग साइंटिफिक टास्क सेटिंग. डू दी साइंटिफिक टास्क सेटिंग. जो टास्क आप अरेंज करने वाले हो या जो टास्क आप अपने एम्प्लॉयज को देने वाले हो, उनको क्या करना, साइंटिफिकली अरेंज करना. सो दैट इज गोइंग टू बी आवर थर्ड पॉइंट ऑफ टेक्निक, साइंटिफिक टास्क setting. Basically, you're going to set the performance standards for your employees. Correct? It is basically based on, or we can say that it is the extension of the time study. अभी जो work study के अंदर किया था, determination of the time, कि इतने पीरियड में आपको अपना टास्क क्या करना है, अकम्प्लिश करना है. इट विल गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजर इन फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क. आप एक दिन में इतना काम करें तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी. यू आर वर्किंग फॉर 8 hours इन अ डे, तो आपकी सैलरी इतनी होगी. ओवर टाइम करते तो इतनी सैलरी. ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर principle is going to help the organization and the manager in fixing a fair day's work. It is important to prevent the employees from doing the work much below their capacities. अगर आप अपने एम्प्लॉय के पोटेंशियल कैपेबिलिटीज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, सो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका एम्प्लॉय क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा. यू गोइंग टू लैक द इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट है? और फिर वो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेशन के साथ अपना टास्क अकम्प्लिश करेगा और बहुत ही इनएफिशिएंट इनइफेक्टिव मैनर में वो आपको क्या करेगा, टास्क कंप्लीट करके प्रोवाइड करेगा, विच इज नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. So it is important to prevent your employees from doing the work much below their capacity. So by this technique, employees will complete the task according to the standards given. Within the time period वो क्या करेंगे, टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. आप उनकी कैपेसिटीज को क्या करोगे, यहाँ पे टू द फुलेस्ट एक्सटेंट यूटिलाइज करोगे विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ फटीग अमंग दी वर्कर्स. करेक्ट है? सो दिस we are done with this point. Now the next point is scientific selection. So next technique of scientific management is scientific selection of employees, and after selecting the employees, give them the proper training. So according to the Taylor, there should be the selection of the employees is the most important task which is given to the manager. Correct? So the selection procedure should be perfect and systematic. जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके या अडॉप्ट करके आप एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने वाले हो, वो परफेक्ट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर होना चाहिए. फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है जॉब को, जो पर्टिकुलर वैकेंसी है. करेक्ट है? जो जॉब
रिक्वायरमेंट है उसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या मेंटल रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल या फिर अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, अदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के अंदर, ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए. सो जॉब स्पेसिफिकेशन शुड बी एज पर दी रिक्वायरमेंट. करेक्ट है. आपको एक क्लर्क चाहिए. क्लर्क का जॉब होता है छोटा मोटा पेपर वर्क फ्रॉम वन डेस्क टू अनदर डेस्क ट्रांसफर करना, टू प्रोवाइड दी टी, कॉफी एंड दी अदर बेवरेजेस टू दी ऑफिसेस. करेक्ट है. एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पेपर्स को क्या करना, ट्रांसफर करना, नंबर ऑफ टाइम्स स्टैंप लगा के देना. दैट इज द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लर्क्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. और आप उसके लिए स्पेसिफिकेशन रख रहे हो, MBA बंदा चाहिए फॉर द पोजिशन ऑफ क्लर्क. रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा ना, मैच नहीं हो रहा है. करेक्ट है. सो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब होना चाहिए. आपको फाइंड आउट करना है कि इस जॉब के लिए क्या फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल, अदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप जॉब स्पेसिफिकेशन क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे. करेक्ट है. नाउ सिलेक्शन स्टैंडर्ड शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड इम्पार्शियल. जिन स्टैंडर्ड्स को आधार करके आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे वो प्री डिटरमाइंड होने चाहिए, ऑन द स्पॉट नहीं. मैंने बोल दिया आई एम द मैनेजर ऑफ द कंपनी, आई हैव सेड टू अपॉइंट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, अपॉइंट कर लो. नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. पहले होता था, अब नहीं होता. इम्पार्शियल वे में बाय अदरिंग टू दी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना. तुम किसी बहुत बड़े MLA के बेटे हो, हाँ ठीक है, हो गए. यहाँ पे हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो, उसको कंप्लीट करो. अगर तुम उसमें पास होते हो देन वी विल अपॉइंट यू एज एन एम्प्लॉय ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, और एल्स टाटा बाय बाय, अपने घर को जाओ. अरे आपको समझ में, IAS बनना है, IPS बनना है, IAS का बेटा IAS बनेगा ऐसा नहीं है. हाँ, बन सकता है अगर वो उतना क्वालिफाइड, उतना कैपेबल इनफ है तो, अगर उसके पास उतना नॉलेज है तो बन सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता. लेकिन एक IAS का बेटा 10th फेल है और वो उसको भी IAS बना देगा, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है. बाय यूजिंग अदरिंग टू एनी मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सिलेक्शन के लिए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी इम्पार्शियल biasness by the officers who are going to appoint the employees. करेक्ट है. सो सिलेक्शन प्रोसीजर प्री डिटरमाइंड होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए. दैट इज टू बी मस्ट टू बी डन बाय दी ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ आफ्टर आपने एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को अडो करते हुए इन एन इम्पार्शियल वे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? आफ्टर सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, just in order to make that particular employee familiar with your working condition. आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कंडीशन, वर्किंग पैटर्न से फेमिलियर बनाने के लिए आपको उसको एक्सपर्ट बनाने के लिए इनटू द टास्क जो आप उसको असाइन करने वाले हो, आप उसको क्या करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे. सो आफ्टर सिलेक्शन प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज, just in order to increase their efficiency, just in order to increase their performance into the organization, or we can say the performance towards the organization. Stop, and we're going to move towards the next technique of scientific management, that is functional. Now the next technique of scientific management is functional organization. Functional organization. Now this particular technique is completely against the Fayol's यूनिटी ऑफ कमांड. करेक्ट है. यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, दैट एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस क्या करेगा, ऑर्डर्स पास ऑन करेगा. ये पर्टिकुलर टेक्निक इज कम्प्लीटली वाइसा वर्सा, इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ अकॉर्डिंग टू Fayol ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको प्रोवाइड किए, अकॉर्डिंग टू Fayol अ फैक्ट्री मैनेजर शुड पोजेस the quality of, एक फैक्ट्री मैनेजर के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. He should be the intelligent. A factory manager should possess the quality of intelligence, the quality of education, tact, judgment, special knowledge होनी चाहिए, honesty होनी चाहिए, energy होनी चाहिए, good health भी होनी चाहिए. Now we all know that now since it is not possible, not necessary यार कि हर एक इंडिविजुअल में इतनी सब क्वालिटीज हो, ठीक है. So one person, it is not necessary that one person should have all these qualities. So Taylor ने क्या suggest किया? Taylor suggested to separate the work of planning with the work of production. अलग अलग कर दो.
प्लानिंग स्टेज अलग है, प्रोडक्शन स्टेज अलग है, दोनों के काम अलग अलग है। बट एक एम्प्लॉय, एक वर्कर जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है अंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उस वर्कर को प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे, वहां के बॉसेस भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेंगे, और प्रोडक्शन मैनेजर जिनके जस्ट बिलो वो काम कर रहा है, ठीक है, वो भी उसको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, एक एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन दो डिपार्टमेंट से क्या लेगा, इंस्ट्रक्शंस लेगा। दैट मीन्स दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम द 8 क्लर्क्स। That means the employee is going to receive, the worker is going to work under the 8 different clerks। 8 अलग अलग बॉस अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेंगे, जिनको सुन के समझ के हमारे एम्प्लॉय को अपने वर्क को, गिवन टास्क को क्या करना होगा, अकम्प्लिश करना होगा, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ताकि आप स्पेशलाइजेशन अचीव कर पाओ उस पर्टिकुलर टास्क में, उस पर्टिकुलर जॉब में। इसके लिए टेलर ने कहा कि बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है कि हम प्रोडक्शन और प्लानिंग लेवल को क्या करें, अलग अलग करें, और हर लेवल पे हर क्लर्क क्या करे, एम्प्लॉय को जो एक्चुअल में प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करे। सो फैक्ट्री मैनेजर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स, पहला है प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज। दोनों ही लेवल में 4 अलग अलग क्लर्क्स होते हैं, करेक्ट है। प्लानिंग इंचार्ज में आपका इंस्ट्रक्शन क्लर्क आएगा, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन क्लर्क आएगा। देन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर फॉल करेगा, करेक्ट है। तो वन बाय वन विल जस्ट सी टू इट। अंडर प्लानिंग इंचार्ज सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड clerk, instruction card clerk. Now he is the one who is going to prepare the instructions which are going to be given to the employees and the workers. Worker को जो instructions pass on होती हैं, करेक्ट है, उन instructions को prepare कौन करता है, under planning in charge हमारा instruction card clerk क्या करता है, उन instructions को prepare करता है जिनको follow करते हुए हमारा worker अपने job को accomplish करता है। फिर आता है रूट क्लर्क, ही इज गोइंग टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन। क्या रूट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश द टास्क। वो एग्जांपल याद है आपको, चेयर वाला जो लिया था, जहाँ पे द मैनेजर हैज टू, वर्कर हैज टू पुट द चेयर फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड इन द रूम। ये वाला डायग्राम था, बेस्ट वे ये वाला था, करेक्ट है। मिस्टर ए को चेयर यहाँ पे रखनी थी इस एंड पे, तो एक रूट ये था, एक रूट ये था, एक रूट कैसा था, जेड वे पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर अपने डेस्टिनेशन को पहुंच रहे थे, करेक्ट है। तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है आपके टास्क के अकॉर्डिंगली, आपके टास्क को एनालाइज करके, ठीक है, विच इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू अकम्प्लिश द टास्क, ये आपको कौन बताएगा, वो ये आपको बताएगा आपका रूट क्लर्क, करेक्ट है। देन कम्स द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इस पर्टिकुलर टास्क को अभी हमने देखा कि हमारा बेस्ट वे कौन सा था, चेयर को अगर आपको प्लेस करना है यहाँ से यहाँ, तो बेस्ट वे ये था हमारा, करेक्ट है। तो ये हमको हमारे रूट क्लर्क ने बता दिया कि भाई दिस इज द बेस्ट वे, गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, सो दैट आप अपने टास्क को क्या कर पाओगे, अकम्प्लिश कर पाओगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में, करेक्ट है। लेकिन कितने टाइम में अकम्प्लिश करना है, कितना टाइम है आपके पास चेयर को इस एंड से इस एंड पे मूव करने के लिए, ये टाइम कौन डिटरमाइन करता है, ये टाइम डिटरमाइन करेगा आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड एट द टाइम ऑफ मूविंग द चेयर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, कितना कॉस्ट होगा, कितना कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, याद आ रहा है कुछ, करेक्ट है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम इन द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द टास्क, ये आपको कौन बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा। देन कम द डिसिप्लिन क्लर्क। ऑर्गेनाइजेशन में हर वर्कर, हर एम्प्लॉय, इंक्लूडिंग द मैनेजर ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही अपने टास्क को अकम्प्लिश कर रहा है या नहीं, ये देखने का काम किसका है,
हमारे डिसिप्लिन क्लर्क का है। दैट एम्प्लॉइज द डिसिप्लिन क्लर्क हैज टू इंश्योर दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फैक्ट्री। करेक्ट है। तो ये चारों के चारों क्लर्क कहाँ फॉल करते हैं? प्लानिंग इंचार्ज है। ये किसके इंचार्ज हैं? प्लानिंग इंचार्ज है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करेगा जो एम्प्लॉइज को देनी है। रूट क्लर्क रास्ता बताएगा कि कौन से वे को चूज करके कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है जिसको आप ऑप्ट करके अपने टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हो। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा कितना टाइम आपके पास है और कितना पैसा आपके पास है जिसके हेल्प से आप अपने टास्क को अकम्प्लिश करोगे। करेक्ट है। और आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये कौन देखेगा? हमारा डिसिप्लिन क्लर्क देखेगा। यहाँ पे वी आर डन विद दी प्लानिंग इंचार्ज। यहाँ पे वी आर डन विद दी प्लानिंग इंचार्ज। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इंचार्ज। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इंचार्ज। करेक्ट है। प्रोडक्शन इंचार्ज में हमारे आते हैं गैंग बॉस। ही इज गोइंग टू इंश्योर दैट द अवेलेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट अमाउंट में मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है, ये फाइंड आउट करता है गैंग बॉस और मेक श्योर करता है दैट आपको दिया हुआ काम, एम्प्लॉइज को दिया हुआ काम ऑन टाइम या बिफोर टाइम अकम्प्लिश हो जाए। सो ही इज द वन हु इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड गेट्स द वर्क डन फ्रॉम द एम्प्लॉय। ही गेट्स द वर्क डन फ्रॉम द एम्प्लॉइज। गैंग बॉस बताता है, गैंग बॉस इंश्योर्स करता है दैट वर्क हैज टू बी डन। वर्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में सारे टूल्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। करेक्ट है। फिर आता है हमारा स्पीड बॉस। ही इंश्योर्स दैट द एंटायर प्रोडक्शन वर्क इन दी विद इन दी टाइम। एंटायर प्रोडक्शन वर्क इज डन विद इन दी टाइम। ये क्या इंश्योर करता है? वो टाइम ड्यूरेशन जो हमारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने अंडर द प्लानिंग इंचार्ज क्या किया था? डिटरमाइन किया था कि आपके पास इतना टाइम है इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, तो उतने ही टाइम में प्रोडक्शन वो कंप्लीट होता है, ये देखने का काम किसका है? स्पीड बॉस का है। ही हैज टू मेक श्योर कि जो टाइम फ्रेम इसने दिया है उतने ही टाइम फ्रेम में आपका काम क्या होगा? अकम्प्लिश होगा। हर वर्कर उसी टाइम फ्रेम में अपना काम कंप्लीट करेगा। ये मेक श्योर करता है हमारा स्पीड बॉस। फिर आता है रिपेयर बॉस। हम फैक्ट्री की बात करें, यू आर गोइंग टू डील विद लॉट ऑफ मशीनरीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो उनको वर्किंग कंडीशन में बनाए रखने का काम कौन करता है? हमारा रिपेयर बॉस करता है। ही टेक्स और ही अंडरटेक्स दी केयर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिपेयर्स इन रिक्वायरमेंट्स डन इन दी ऑर्गेनाइजेशन on the machineries, tools and equipments. Then comes the inspector. Now inspector ensures that everything is done as per the plan and checks the quality of the production. ये make sure करता है कि ये सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही हैं या नहीं। गैंग बॉस मेक श्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पीड बॉस विद इन द टाइम फ्रेम काम करवा के ले रहा है या नहीं करवा के ले रहा है। रिपेयर बॉस जो है वो टूल्स एंड मशीनरीज अगर बंद हो गई है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तो उन पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों का ध्यान रखता है हमारा इंस्पेक्टर। एंड इंस्पेक्टर ऑल्सो मेक श्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एट एनी कॉस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। क्वालिटी चेक करने का काम भी कौन करता है? हमारा इंस्पेक्टर करता है। सो इन शॉर्ट आपका वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन सब लोगों से इंस्ट्रक्शंस लेने वाला है। एंड आफ्टर दैट ओनली ही इज गोइंग टू एबल टू अकम्प्लिश द टास्क, गिवन टास्क इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। वो इंस्ट्रक्शन क्लर्क से पता करेगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। रूट क्लर्क बताएगा रास्ता उसको अपने टास्क को अकम्प्लिश करने का। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा कि उसके पास कितना टाइम है और कितना पैसा है। डिसिप्लिन क्लर्क बताएगा कि व्हाट आर द बाउंड्रीज विद इन विच ही इज और शी इज सपोज्ड टू परफॉर्म देयर वर्क्स एंड ड्यूटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। गैंग बॉस मेक श्योर करेगा कि काम टाइम पे हो रहा है। करेक्ट है। इनको सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल करा के देगा। स्पीड बॉस क्या करेगा? वर्कर को बताएगा कि भाई इतना टाइम हो गया, इतना टाइम बचा है, तुमको अपना टास्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है। रिपेयर बॉस अगर वर्कर मशीनरी पे काम करते हुए मशीनरी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको ठीक करके देगा। और इंस्पेक्टर इंश्योर करेगा कि ये बाकी के सारे इंक्लूडिंग दी वर्कर अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो
here we are done with the functional organization. Just stop. Now the last technique of principle of management is the technique. So the last technique of principle of management is different piece rate wage plan. करेक्ट है. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. जब हमने फेयल के प्रिंसिपल्स किए थे 14 प्रिंसिपल्स, तो एक प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. अंडर दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल फेयल हैज टू एक्सप्लेन अस कि नो मैटर आप किसी भी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर आप सेम लेवल पे हो तो आपका रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. प्रोडक्शन मैनेजर और हमारे मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि दोनों मैनेजर की पोजीशन पे हैं, दोनों का पैकेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अपोज किया मिस्टर टेलर. नाउ टेलर सेड दैट एम्प्लॉयज का जो रेम्यूनरेशन है वो उनके पोटेंशियल और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होना चाहिए, ना कि उनके लेवल के अकॉर्डिंग. हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो एज कम्पेयर टू द मार्केटिंग मैनेजर, जो प्रमोटर के बस अभी कल ही मार्केटिंग मैनेजर बना है. करेक्ट है. सो व्हेन इट कम्स टू द सैलरी, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल, आपका नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस का भी वर्थ होता है. सो मार्केटिंग मैनेजर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है एज कम्पेयर टू अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो सैलरी तो डिफर करेगी ना. सो दिस प्रिंसिपल, दिस टेक्निक इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. According to Taylor, there should be the bifurcation or the discrimination between the efficient and inefficient worker. Efficient और inefficient workers के बीच में bifurcation होना चाहिए. करेक्ट है. Payment should be made according to the performances of the employees. जो जैसा काम करेगा उसको वैसी पेमेंट आप पे करो. अच्छा काम करोगे ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, बेटर इंसेंटिव्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम योर सैलरीज. इफ यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल, आपको ये डर हमेशा लगा रहेगा कि योर ऑर्गेनाइजेशन विल गोइंग टू फायर यू. इस डर की वजह से आप क्या करोगे, अपने 100% डेडिकेशन के साथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन काम करोगे. सो पेमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंसेस ऑफ द वर्कर रादर देन प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन पे रेजिस्ट करने की. एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर इन द फॉर्म ऑफ बेटर इंसेंटिव्स. ऑन द अदर हैंड द इनएफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड लेस. ठीक है, उनको कम पे करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन. ये जो स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस के, ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं, हमने पहले ही देखा था. जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड द बायसनेस इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट है. इसलिए स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का बेटा है, इसलिए वो काम नहीं भी करेगा तो भी उसको हर बार क्या मिलेंगे, उसको इंसेंटिव्स मिलेगा, उसको ऑन टाइम सैलरी मिलेगी, एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर गोइंग टू फायर हिम ऑफ, किक हिम ऑफ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए. सबके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं, और हर एक एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स उसके एफिशिएंसी लेवल के बेसिस पे ही दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन. सो जस्ट टू प्रिवेंट द पार्शियलनेस इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है, स्टैंडर्ड्स आर गोइंग टू बी प्री डिटरमाइंड. नाउ दोज हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड्स, ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है. वो एम्प्लॉय जो इन स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस करता है उनको ऑर्गेनाइजेशन अप्रिशिएट करेगी, उनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगी, और उनको ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, बेटर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी. करेक्ट है. फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्कोप होगा उनके पास विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ऑन दी अदर हैंड वाइस वर्सा, दोज एम्प्लॉयज हु आर नॉट परफॉर्मिंग, हु आर नॉट एबल टू अचीव दी स्टैंडर्ड्स विद इन द गिवन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर. करेक्ट है. Now this particular technique will going to help you out to encourage those employees who are performing well. आज अच्छा किया, कल और अच्छा करोगे, और ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, और ज्यादा इंसेंटिव मिलेगी, आपकी पोजीशन क्या होगी, रेज हो जाएगी इन दी ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑन दी अदर हैंड इट विल गोइंग टू मोटिवेट दोज एम्प्लॉयज हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कि यार अगर मैं भी अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी ये सब मिलेगा. करेक्ट है. तो मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए. वेयर एम आई लैकिंग, मुझे अपने लैकिंग बिट्स फाइंड आउट करना है, उस पर काम करना है, मुझे इसको बीट करना है. ठीक है, या मुझे इससे अच्छा परफॉर्म करना है, सो दैट ये पोजीशन, ये इंसेंटिव मैं भी ले सकूं, ये अप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइजेशन मेरा भी हो इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपके वेल परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को एनकरेज करेगा, साथ ही साथ नॉन परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा टू परफॉर्म वेल. So guys, here we are done with the today's lecture, where we have covered all the six techniques of scientific management, correct, which are going to be helpful
at the time of implementation of the principles of scientific management. Go through with the lecture. Yes, I have been kept telling you in the every lecture that any doubt, please feel free to contact me. Just go through with the lecture, prepare notes and start studying. Thank you.